Hello students, so in this video we are going to discuss about the second use of dimension, that is to convert physical quantities from one system to another system. Okay, तो यहाँ पे लिख सकते हैं conversion of physical quantities from one system to another system. Okay, so this is our heading of today class. So before going to the examples, we need to discuss about some theory portions. Okay, so first let's see how we convert from one system to another. Let us consider a physical quantity, that is acceleration due to gravity, and the value is known to all of you, which is equals to 9.8 meter per second square. Okay, now if we are interested to convert this physical quantity into its CGS value, let's convert it. Okay, so G equals to 9.8 meter per second square. Now 9.8 into here we have to convert this meter into centimeter. Okay, so in 1 meter we have 100 centimeter, right? And the remaining second square, it's same in both CGS and SI systems, so this is okay. Now after multiplying 9.8 by 100, we will be getting 980, and the units are, this is centimeter per second square. So simply we can say that if we convert the value of G, which is 9.8 meter per second square in SI system, after conversion in CG system we will be getting the value as 980 centimeter per second square. Now what is the topic we are going to discuss? Actually we are interested to learn how the conversions are done using the methods of dimensions. That means here we are interested to know how quantities are converted from one system to another. So this is our ordinary method, how we convert. Now we have to see how dimensionally it is done. Okay, so first we will need to discuss about some theory portions. So here if we observe these two quantities, okay, so here it is 9.8 meter per second square, but when the same quantity is expressed in different unit systems, we find that it is equals to 980 centimeter per second square. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जब भी हम लोग एक यूनिट सिस्टम से दूसरा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तब इसका न्यूमेरिक वैल्यूज में कैसे चेंजेस आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो यूनिट है, ये एसआई यूनिट, ऑब्वियसली एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट से बड़ा यूनिट है। तो जब यहाँ पे यूनिट बड़ा हो जाता है, तब देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये 9.8 है, और जब ये यूनिट छोटा हो गया, साथ ही साथ इसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये बड़ा हो गया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि इस नंबर को मान लो इसको डिनोट किया गया n के जरिए। ओके, और यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करते हैं n2 के जरिए। पर अभी बात यह है कि यू सी हियर इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, बट ये सिर्फ यूनिट का चेंजेस है। पर यूनिट का चेंजेस मतलब क्या है, यूनिट पे चेंज हो गया, ऐसे तो नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज सेम। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायमेंशन को यूज़ करते तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, जैसे कि m0 l1 t -2, ठीक है। और इस साइड में क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी तो डायमेंशन सेम है, m0 l1 t -2, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू n1, हियर इट इज n2। यहाँ पे डायमेंशन जो है, यहाँ पे भी डायमेंशन सेम है, पर यहाँ पे यूनिट डिफरेंस है। अभी इस डिफरेंट यूनिट्स को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे सबके सफिक्स में 1 लगा देते हैं, इस साइड में सबके सफिक्स में 2 लगा दिया, ठीक है। अभी मान लो ये तो this dimension is for a particular quantity for acceleration, right?
अभी हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन छोड़ के कि मान लेते हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, तो कहीं भी फिजिकल क्वांटिटी अगर होगा तो इसका भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन डिफरेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग इसी सेम इक्वेशन को किसी एक जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पे n1, फिर आता है यहाँ पे डायमेंशन जैसे कि m/l/t, सबका सफिक्स में क्या हो जाएगा 1 1 1 इक्वल्स टू, ये इक्वल टू रहेगा n2 और डायमेंशन में m/l/t। ठीक है, यहाँ पे पावर में क्या है मैंने कुछ अब तक नहीं बोला, दिस 2, सबके सफिक्स में यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अभी जैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है इसलिए डायमेंशन आया है m0l1t-2। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ पे अगर वेलोसिटी हो गया होता तो उसका डायमेंशन में क्या चेंजेस आता m0l1t-1। तो ऐसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन बदलता रहेगा, इसलिए हम लोग इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे डायमेंशंस का जो पावर रहेगा यहाँ पे a होगा, l के लिए b और टाइम के लिए c। तो यहाँ पे जो डायमेंशंस रहेगा वहाँ पे भी डायमेंशंस बस सफिक्स में चेंजेस है, तो डायमेंशंस यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं a b c। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन मिला इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम लोगों को कन्वर्शन करना है। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे n2 का वैल्यू डिटरमाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे n2 हम लोगों को ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था, हम लोगों को डिटरमाइन करना था ये 9.0 का वैल्यू 980 का वैल्यू डिटरमाइन करना था। इसी तरह हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि n1 दैट इज 9.8 दिया हुआ है, इसके लिए कुछ यूनिट्स है, मतलब इसका डायमेंशन जो है सफिक्स में 111 रहेगा। यहाँ पे n2 दैट इज 980 को डिटरमाइन करना है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोगों को n2 को डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि n2, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे n1 तो पहले से है ये रहेगा, बाद में क्या हो जाए इस क्वांटिटी के नीचे ये जो डायमेंशन वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। जैसे कि ये ऐसा हो जाएगा m1 l1 t1 पावर में a b c, नीचे m2 l2 t2 और यहाँ पे पावर a b c लाइक दिस। तो ये आ गया n2 का वैल्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू n1, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं m1 बाई m2 पावर में a, देन L1 बाई L2 पावर में B, देन T1 बाई T2 पावर में C, और दिस इज इक्वल्स टू N2। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये है जिसको यूज़ करना है, दिस इज n2 इक्वल्स टू n1 और दिस इज m1 बाई m2 और a ये कोई कुछ भी हो सकता है, इसे जनरलाइज फॉर्म के हिसाब से a b c ले रहा हूँ। ओके, तो l1 बाई सॉरी दिस इज t1 बाई t2 पावर में c। ओके, तो पहले जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू CGS सिस्टम। जैसे कि ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, तो हमें पता है इसका वैल्यू जो निकलेगा दिस इज इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टिल वी हैव टू डू दिस डायमेंशनली। तो पहले हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन में, गिवन द वैल्यू ऑफ g which is equals to 9.8 meter per second square is to be converted into CGS सिस्टम। ठीक है, अभी हम लोगों को पहले
ये जो g है इसका डायमेंशन निकलना है, देन फ्रॉम द डायमेंशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ओके, तो डायमेंशन ऑफ g इज इक्वल्स टू क्या है, m0 L1t - 2। ठीक है, तो इसी डायमेंशन फार्मूला को अगर इसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तो m के पावर में यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम लोग बोल देंगे कि देयरफॉर a इक्वल्स टू 0, जैसे कि l के पावर में b है और यहाँ पे l के पावर में 1, तो हम लोग बोल देंगे b इक्वल्स टू 1। जैसे कि यहाँ पे t के पावर में c और यहाँ के t के पावर में -2, सो विल से दैट c इक्वल्स टू -2। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। नाउ अभी हम लोगों को क्या करना है कि जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हमेशा लेफ्ट में रखेंगे और जो डिटरमाइन करना है, जिसके CGS वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, उसको हमेशा राइट साइड में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नाउ SI सिस्टम ये दिया हुआ है और CGS सिस्टम ये डिटरमाइन करना है। जो डिटरमाइन करना है वो उसको हमेशा राइट साइड में रखना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग N1 का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जैसे कंसिडर करेंगे। तो N1 इट इज़ ऑलरेडी गिवन विच इज़ इक्वल्स टू 9.8। तो यहाँ पे N1 नहीं, हम लोग लिख लेते हैं G इक्वल्स टू 9.8 और इसे हम लोग मान लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू N1। ओके, अभी हमारा ड्यूटी है कि MLT को कंसिडर करना है, जैसे कि M1 L1 T1 और M1 इन SI सिस्टम, जैसे कि मास दिस इज इक्वल्स टू 1 kg, L1 इक्वल्स टू 1 मीटर, देन T इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे CGS सिस्टम, जैसे कि G का वैल्यू डिटरमाइन करना है, G इक्वल्स टू व्हाट, वो हमें नहीं पता, लेट दिस इज इक्वल्स टू N2 जो डिटरमाइन करना है। अभी क्या है M2 L2 T2। तो M2 का वैल्यू क्या है इन CGS सिस्टम, मास का वैल्यू क्या है 1 ग्राम, लेंथ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिल गया। अभी सिंपली इस फॉर्मूला में हम लोगों को ये सब का वैल्यू पुट कर देना है, जैसे कि देयरफॉर N2 इक्वल्स टू N1। तो N1 का वैल्यू क्या है, N1 इक्वल्स टू दिस 9.8 इनटू, तो M1 M2, M1 1 kg, M2 1 ग्राम, तो 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और पावर में A मीन्स व्हाट, ऑलरेडी हम लोगों ने डिटरमाइन कर चुके हैं, दिस इक्वल्स टू 0। अभी L1 क्या है 1 मीटर, L2 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो L1 की जगह पे 1 मीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, पावर में क्या है B और B का वैल्यू है 1। अगेन T1 1 सेकेंड, T2 1 सेकेंड, पावर में -2। ओके, तो ये हो गया। नाउ आवर ड्यूटी इज टू कन्वर्ट, either we have to convert 1 gram into kg or kg into gram. Now since the value is given in SI system and we are interested to convert it into CGS system, so all the values in SI system are to be converted into CGS, मतलब हम लोगों को CGS में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि kg, मीटर, सेकेंड ये सब दिया हुआ है SI सिस्टम, तो हमारा ड्यूटी है कि जो सब वैल्यूज SI सिस्टम में सबको CGS में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो 9.8 इंटू नाउ 1 kg इक्वल्स टू 10 to the power 3 ग्राम, 1 ग्राम अभी पावर में 0। तो ये तो हम लोगों ने कन्वर्शन किया है। परफेक्ट ये है कि इसका पावर में 0 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रहेगा, वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर में 1, यहाँ पे 1 सेकेंड नो चेंज, पावर में -2। ओके, देन 9.8 इंटू, देखो ये तो पावर में 0 है तो इसका वैल्यू 1 आ गया, देन हियर इट इज़ 100/1, दैट मीन्स इक्वल्स टू 100, पावर में भी 1 है तो 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1।
तो आखिर में क्या वैल्यू निकल के आया है, दिस इज इक्वल्स टू 980. सो वी कैन से दैट देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. अभी हम लोग इसका रिवर्स करके भी देख सकते हैं. जैसे कि मान लो तुमको दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम इज इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम. देन हाउ टू डू दिस, लेट्स चेक इट. क्वेश्चन 2, convert value of G which is equals to 980 centimeter per second square into SI system. रिवर्स करना है. जैसे कि CGS वैल्यू दिया हुआ है और हमें इसको SI यूनिट में एक्सप्रेस करना है. ओके, तो अभी मैं इतना डिटेल में नहीं लिखने वाला हूँ, बस शॉर्टकट जितना हो सके. ओके, तो पहले हम लोगों को उसका डायमेंशन निकलना है. ठीक है, डायमेंशन ऑफ G इक्वल्स टू कितना है, m0 L1 T माइनस 2. तो कंपेयरिंग उस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके हम लोगों को क्या मिला है, देयरफॉर A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 1 एंड C इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है, उस इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर करोगे तो MLT का जो पावर रहेगा उसके साथ कंपेयर करके ये सब वैल्यू मिला है. ओके, तो अभी हमारा ड्यूटी है कि दो साइड कंसीडर करना है. वन साइड जो दिया हुआ सिस्टम है राइट साइड में रहेगा, जिस सिस्टम में हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है. ओके, तो लेफ्ट साइड में कौन सा साइड रहेगा, CGS, क्योंकि ये दिया हुआ है. ओके, CGS सिस्टम ये दिया हुआ वैल्यूज है और कन्वर्ट करना है SI सिस्टम में. ओके, तो इसलिए इसको राइट साइड में रखा है. पहले हम लोग लिख लेंगे G इक्वल्स टू 980 और इस वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू N1 और यहाँ पे N2 को डिटरमाइन करना है. जैसे कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, G को डिटरमाइन करना है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इन SI सिस्टम और इस वैल्यू इक्वल्स टू N2. ओके, तो अभी यहाँ पे M1 L1 T1 लेना है. ठीक है, और यहाँ पे M2 L2 T2. अभी बात यह है कि दिस इज द लिस्ट ऑफ CGS यूनिट्स. तो CGS सिस्टम में मास का वैल्यू क्या होता है, 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड. इस सेट में क्या हो जाता है, दिस इज SI सिस्टम, तो यहाँ पे kg मीटर सेकेंड. ठीक है, अभी क्या है, सिंपली उसी इक्वेशन में प्लेस करना है. देयरफॉर N2 इक्वल्स टू N1, एक बार लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C. ठीक है, अभी N1 का वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 980 इंटू अभी M1 इक्वल्स टू 1 ग्राम एंड M2 इक्वल्स टू 1 kg. तो M1 की जगह पे 1 ग्राम और नीचे 1 kg. पावर A मीन्स 0, फिर 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, पावर B इक्वल्स टू 1, देन 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, पावर है -2. अभी दिस इज इक्वल्स टू 980 इंटू, अभी यहाँ पे बात यह है कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है या केजी को ग्राम में. तो हमें पहले देखना है किस यूनिट सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हम लोगों का इंटेंशन ये है कि CGS को SI में कन्वर्ट करना है. मतलब यहाँ पे जो जितना सारा CGS यूनिट्स रहेगा सबको SI में एक्सप्रेस करना है. दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्राम दिया हुआ है उसको केजी में एक्सप्रेस करना है. तो नीचे तो ऑलरेडी केजी दिया हुआ है और ग्राम को अगर केजी में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 kg. ओके, पावर में 0, मतलब इसका वैल्यू 1 है. नाउ दिस
1 centimeter. If it is expressed in meter, we'll be getting 10 to the power minus 2 meter divided by 1 meter power 1. And here it is same, 1 second by 1 second power minus 2. तो यहाँ पे मिल रहा है 980 इंटू दिस इज इक्वल्स टू 1, पावर में 0 है. यहाँ पे मिल रहा है 10 to the power minus 2 और यहाँ पे मिल रहा है 1. तो 10 to the power minus 2 के जरिए 980 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा 9.8. हो गया. तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर जी का वैल्यू जो दिया हुआ था 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्शन के बाद क्या आ जाएगा, आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये रहा हमारा रिजल्ट. ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस भी कर लिया हम लोगों ने. और भी 2-4 एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और देख लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G means universal gravitational constant, G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg to the power minus 2. It is in SI system. We have to convert it into in CGS system. Okay, CGS में convert करना है. तो यहाँ पे हम लोगों को पहले उसका डायमेंशन कंसिडर कर लेना चाहिए. इससे पहले थोड़ा लिख लेते हैं. गिवन G equals to 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square kg to the power minus 2, which is to be converted into CGS सिस्टम. ओके, तो पहले उसका डायमेंशन ऑफ G, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G which is equals to m minus 1 L3 T minus 2. अगर मान लो ये वैल्यू भूल गया तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एनालाइज करके भी वो डायमेंशन फॉर्मूला निकल सकते हैं. जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी टू द पावर माइनस 2. तो पहले ये बताओ न्यूटन ये जो चीज़ है क्या, किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स. और फोर्स के लिए 1 न्यूटन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, 1 न्यूटन इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट्स, दिस इज इक्वल्स टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर लिख लेते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू न्यूटन. देन अगेन यू हैव मीटर स्क्वायर के जी टू द पावर माइनस 2. तो क्या हो जाएगा, के जी टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1, तो के जी टू द पावर माइनस 1. यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर 1, दैट मीन्स मीटर क्यूब और s माइनस 2. तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस 1 L3 T माइनस 2, जो हमने यहाँ पे लिखा है. ओके, तो अभी क्या करना है, दो साइड कंसिडर कर लेना है, SI सिस्टम. अच्छा, यहाँ पे ABC का वैल्यू तो वैल्यू निकालना है. हियर देयरफॉर A इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1, B इक्वल्स टू 3 और C इक्वल्स टू माइनस 2. ओके, इन SI सिस्टम और कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में. ओके, लिख लिया. अभी G इक्वल्स टू 6.67 10 to the power minus 11 और इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू N1. ओके, यहाँ पे G का वैल्यू डिटरमाइन करना है और इसको अनडिटरमाइंड वैल्यू को ले लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू N2. तो अभी SI सिस्टम में M1 L1 T1. ओके, दिस इज इक्वल्स टू kg 1 मीटर 1 सेकेंड. हियर दिस इज M2 L2 T2. This is equals to 1 gram 1 centimeter 1 second. Okay, now we have to use the formula. Therefore N2 equals to N1 and the formula is M1 by M2 A L1 by L2
B T1 by T2 C. Okay, so this is equals to 6.67 10 to the power minus 11 into M1 1 kg, M2 1 gram. So M1 equals to 1 kg by 1 gram power A means minus 1. Okay, then 1 meter by 1 centimeter power B means 3. Then 1 second by 1 second power minus 2. Okay, then 6.67 10 to the power minus 11 into, now since we are interested to convert it into CGS system, so this 1 kg must be converted into CGS. Okay, therefore this is equals to 10 to the power 3 gram divided by 1 gram, 10 to the power minus 1, 10 to the power 2 centimeter divided by 1 centimeter power 3, 1 second by 1 second minus 2. Okay, then 6.67 10 to the power minus 11, एंड यहाँ पे 10 to the power 3 है और माइनस के जरिए इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 to the power minus 3 आ जाएगा. ओके, इनटू, और जैसे कि यहाँ पे 10 to the power 2 और पावर में 3, दैट मीन्स 10 to the power 6, 10 to the power 6 और यहाँ से 1. ओके, तो जैसे कि ये -3 और ये +6 दोनों मिलके दे रहा है +3, और +3 को -11 के साथ ऐड किया जाए, देन वी विल बी गेटिंग 10 to the power -8. Therefore 6.67 into 10 to the power -8, ये आ गया हमारा रिजल्ट. तो हम लोग लिख लेंगे therefore G equals to 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to the power -2 is equals to 6.67 10 to the power -8. और CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा, जैसे कि न्यूटन का उसका CGS यूनिट डाइन, देन सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ग्राम टू द पावर -2. ओके, सो दिस इज आवर रिजल्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. Now the next question is question 4. Convert 10 joule work into arc using dimension analysis. Okay, analysis. तो यहाँ पे 10 जूल दिया हुआ है, इसको आर्क दैट इज CGS में कन्वर्ट करना है. ठीक है, पहले तो हमें ये पता हो चल जाना चाहिए था कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच आर्क. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. गिवन वर्क डन, क्योंकि ये वर्क डन जूल किस चीज़ का यूनिट है, दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन. वर्क डन W इक्वल्स टू 10 जूल which is to be converted into CGS unit. Okay, तो dimension of work done W equals to work done का यूनिट डायमेंशन है M1 L2 T -2. Okay, therefore A equals to 1, B equals to 2, C equals to -2. ठीक है, now SI system दिया हुआ है, so it is in LHS, the RHS, the system in which it is to be converted, that is CGS system. Okay, so here W is given, W equals to this is 10, let this is equals to N1, and here we have to find the value of W, and let's consider say it as N2. Here M1
L1, T1, okay, 1 kg, 1 meter, 1 second, and here it is M2, L2, T2. This is 1 gram, 1 centimeter, 1 second. Okay, now simply we have to use the formula. Therefore N2 equals to N1, M1 by M2, A, L1 by L2, B, T1 by T2, C. Put the values 10 into M1 kg, M2 gram. Then it is 1 kg by 1 gram, power A means 1. Then 1 meter by 1 centimeter, power 2. 1 second by 1 second, power minus 2. Okay, 10 into, now since we have to convert it into CGS system, so this kg is to be converted into CGS. So 1 kg equals to 10 to the power 3 gram divided by 1 gram in power 1. This is 10 to the power 2 cm divided by 1 cm, power 2. This is 1 second by 1 second, power minus 2. Therefore 10 into, this is 10 to the power 3, यहाँ पे 10 to the power 2 और power में भी 2, that means 4, 10 to the power 4 into 1. okay, तो क्या हो जाएगा, this is 10, यहाँ पे 10 to the power 4 plus 3 plus 1, that means 4 7 8, 10 to the power 8. okay, तो ये हो गया हमारा आंसर. तो therefore W equals to 10 जूल, और इसका जो CGS यूनिट है, दिस इज आफ्टर कन्वर्शन विल बी गेटिंग 10 to the power 8 arc. So this is our result. okay, तो ये रहा हमारा रिजल्ट. ठीक है, उसी तरह और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है. बस ये हो गया सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशंस. And in the next video we'll discuss about the third use of dimensions.